Okay, so in this video, I'm going to talk about benefits of learning English language. Whatever I have felt, especially in my own life, I'm going to talk on the basis of my own experience. I hope that you are going to watch this video till last. If you really know how to speak English, guys, आपको पता होगा कि क्या क्या इसके benefits होगी in your personal life. First thing, no doubt, people are going to treat you like in special way. They make you feel that you are educated. Educated means कि आप एक अच्छे स्कूल से क्वालिफाइड होकर आए हैं. You have profound knowledge of any field, like this kind of things they feel. बट हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है. पर हाँ, स्पेशल अटेंशन आपको मिलती है, नो डाउट. आपको स्पेशल अटेंशन दी जाती है लोगों के द्वारा. I have observed this thing in my life. And second, which is the benefit of after learning English language, that is you can understand, you can read everything. आपके लिए वो नया चीज़ नहीं होगा. जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर if you are learning any new topic of a new field, and if that question or book is written in English, you're not going to feel deconfident that you can't understand that topic. This is not like that. You can easily understand it, you can easily study it. So this is the second benefit. And no doubt third is, this is my favorite one. If you go on any new place, you can talk with people in English. If they can't speak Hindi or your mother tongue, you can communicate with them in English. कितनी अच्छी बेनिफिट है यार, सच में. आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है. इवन इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, यू कैन टॉक विद योर टीचर इन इंग्लिश. सब क्लास वाले बच्चे आपको ऐसे देखेंगे टुकुर टुकुर. तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने स्पेशली फील किया अपने लाइफ में. एंड नो डाउट फोर्थ इज दैट you can guide people. Whoever wants to learn English, you can teach them, you can guide them how they can learn English as well. मानिए या ना मानिए, ये भाषा ऑल ओवर वर्ल्ड में कह सकती हूँ एक बिजनेस वाली लैंग्वेज है. थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन लोग समझते हैं, दे अंडरस्टैंड. भले ही दे कांट स्पीक, बट दे अंडरस्टैंड इट, दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. So this is also a major thing why we should learn English language. And fifth, after learning English, you are going to feel satisfied. कुछ तो ज़िंदगी में अचीव किया है, ऐसा फीलिंग आने वाली है. So yeah, सीखिए. इतनी सारी बेनिफिट्स हैं, सीखिए, क्या दिक्कत है. If you know how to speak Hindi, you can only speak in India. If you know how to speak Marathi, you can only communicate in Maharashtra. If you know how to speak Bhojpuri, you can only communicate in Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, and in Madhya Pradesh. But out of these four states, no one can talk in Bhojpuri language. So, but if you know how to speak English, you can speak this language all over world. सब कोई जानता है, सब कोई बात करता है, सब कोई समझता है. And I think last but not the least, after learning, you are going to feel, if you travel somewhere, if you visit in any restaurant, you can communicate with them in English. If someone is speaking in English language, you're not going to feel deconfident that मुझे कहाँ इंग्लिश आती है, मैं तो गंवार हूँ, इंग्लिश भी नहीं आता. क्या सोचेगा वो कि मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है, एकदम गंवार हूँ. भले ही आप कितना भी अपने फील्ड में ठीक ठाक होंगे, पर इंग्लिश नहीं आती है ना, तो आप ऐसा ज़रूर फील कीजिएगा. सीख लीजिए यार, एक ही तो ज़िंदगी है, सीख लीजिए. अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सीख लीजिए कम से कम. इफ़ आई कैन लर्न
बाय गॉड एवरीवन कैन लर्न। मुझ जैसे गधी बच्ची अगर सीख सकती है ना इस भाषा को, तो भाई सभी कोई सीख सकते हैं। सच में सब कोई सीख सकते हैं। आई एम फ्रॉम बिहार एंड वो भी एक रूरल क्या कहते हैं, रूरल एरिया से, मतलब एकदम कह सकती हूँ पिछड़ा गांव। मतलब पिछड़ा गांव नहीं है, बहुत अच्छा डेवलप्ड एरिया है, पर मेरे लिए वो पिछड़ा ही है। वहाँ के लोग अगर इंग्लिश बोल सकती हूँ मैं वहाँ रहते हुए भी, वही सभी लोग बोल सकते हैं। मैं तो मानती हूँ सभी लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखो यार, आपको सीखना है या नहीं सीखना है, बहुत सिंपल है। 4 चीज़ों पे फोकस कीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 चीज़ अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। 2 चीज़ नहीं भी रही तो कोई दिक्कत नहीं, पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे जोर दीजिए, सीख जाइएगा। टाइम दीजिए, सीख जाइएगा। बाकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सीखते रहिए, क्या दिक्कत है। सीखिए, ठीक है। हमेशा एक स्किल को सीखते रहिए, बहुत काम देती है ये स्किल। आपको ना हमेशा काम देगी, हमेशा। स्किल की तरह इसको लीजिए, लैंग्वेज की तरह ना, सब्जेक्ट की तरह तो बिल्कुल भी ना। स्किल की तरह लीजिए, लैंग्वेज की तरह लीजिए और इन्जॉय करते हुए सीखिए। सच में ऐसे ऐसे फील होना चाहिए, अरे यार कितनी खूबसूरत भाषा है। और सच में बहुत खूबसूरत भाषा है। मेरा मानना है कि हर एक लैंग्वेज अपने आप में बहुत खूबसूरत है। वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे कि वो कैसे उस लैंग्वेज को बोल रहा है, किस तरह से वो बोल रहा है। प्रेम से बोल रहे हैं तो हर भाषा बहुत खूबसूरत है, गुस्से में बोल रहे हैं तो हर भाषा बदतमीज़ ही लगता है। हालांकि वो होता नहीं है, पर बोलने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है। सीखिए, बहुत चीज़ें मिलेगी आपको एक्सपीरियंस करने को, और बहुत आसान है। इंटरनेट की ज़माना में कुछ भी असंभव नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग यू कैन डू। ये बहाना तो बिल्कुल मत मारिए कि कहाँ इन्वायरमेंट है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, कैसे करूँगा, पैसा नहीं है, वो नहीं है। मैंने शुरू में शुरुआत किया था बिना 0 रुपीज़ में, कोई पैसा वैसा नहीं था। पर जैसे जैसे इच्छा शक्ति बढ़ते गई, लोग भी जुड़ते गए, सिखाने वाले भी आते गए और सीख भी ली। सो सीखिए। ओके, बाय।